بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا۔ صدق اللہ العظیم۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے حسینیت اور یزیدیت میں فرق، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بہت زیادہ لوگ جن کو شیطان سستی دلائے گا، جی شیطان سستی دلائے گا، اور وہ میری اس ویڈیو کو اگنور کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم اس ویڈیو کو نہیں سنتے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے، میری ان باتوں کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے سننا ہے، سن کے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ بہت مشکل کام ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میں لمبی چوڑی اور گفتگو کرنے کو چھوڑتا ہوں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ پہلے میں یزیدیت کو بیان کروں گا اور اس کے بعد میں حسینیت کو بیان کروں گا، اور پھر آپ نے ان دونوں میں جو ہے آپ نے فرق کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا کام جو سراسر اسلام کے خلاف ہو، ایسا کام جو سراسر اسلام کے خلاف ہو اور مسلمان ہو کر رہا ہو، وہ یزیدیت ہے، یزیدیت پہ عمل کر رہا۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا، غیبت، چغلی یہ پیدا کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے۔ اسلام کے قوانین کو توڑنے کا نام یزیدیت ہے۔ مثلا نماز کا چھوڑ دینا، یہ یزیدیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے اپنے نانا کی امت کو بتلا دیا کہ نماز چھوڑنا یزیدیت ہے اور نماز قائم کرنا حسینیت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حسینی ہیں، ذرا گریبان میں جھانکنا چاہیے کتنے لوگ نمازی ہیں۔ کیا ہم نمازی ہیں؟ اگر تو نمازی ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ حسینی ہیں۔ اور اگر آپ نمازی نہیں، بے نمازی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نماز کے وقت نماز کو، تو پھر آپ حسینی نہیں۔ پھر دوسرا جو لقب ہوتا ہے وہ آپ پہ فٹ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، تارکین زکوٰۃ کا زکوٰۃ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اسلام کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے۔ یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے۔ کیا ہمارے حکمران قوم کو خزانہ دے رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں؟ قوم کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو حسینی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم کہیں گے یہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت سب کے سب حکمران، میں کسی ایک حاکم کے بارے میں نرم لہجہ نہیں اختیار کرتا، وہ آج کے دور کا کوئی حاکم اور میں نرم لہجہ اختیار کروں، کہوں کہ بھائی فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، نہ نہ نہ، کیونکہ کردار یزید پر عمل کر رہے ہیں، اس کو حسینیت نہیں کہہ سکتے۔ یہ قوم کا خزانہ لوٹ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسرائیلی وزیر اعظم ہو چاہے امریکی وزیر اعظم ہو، یہ سب کے سب
यजीद का किरदार अदा कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान ये इब्ने ज़ियाद का किरदार, ये शिमर का किरदार अदा कर रहे हैं, ये खुली का उमर बिन साद का किरदार अदा कर रहे हैं। आज इलेक्शन हो, तो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले आप किसी भाई से कहें कि भाई आप फलां एमएनए एमपीए को वोट दे रहे हैं, तो यार आपको पता तो है कि ये जालिम है, ये अच्छा बंदा नहीं है, पता नहीं इसने इतने इतने कत्ल किए, अब इसको अपनी जान का खतरा है। तो यार ऐसे बुरे बंदे को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो इतना आपको कहेगा कि भाई मानता तो मैं भी ऐसे ही हूं कि बंदा अच्छा नहीं है, पर है मेरा मामू, मेरे मामू का बेटा है, मेरा चचा लगता है, क्या करूं, मानता मैं भी हूं कि बात गलत है, इसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन रिश्ता भी तो देखे ना। तो यही तो बात थी कि जब इस्लाम की बारी आ जाए तो फिर किसी के रिश्ते को नहीं देखा जाता, फिर इस्लाम की बात मानी जाती। तो इस तरीके से जालिम की सपोर्ट जुल्म है, जालिम को वोट देना जुल्म है। अगर हम अपने घर में ही देख लें, क्या हम अपने बच्चे को इस्लाम की तालीम देने को तैयार हैं? नहीं, हम अपने बच्चे को कभी भी मदरसे भेजने को तैयार नहीं हैं। चलो मान लेते हैं कारी लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है, मान गए हम, लेकिन जो कुछ स्कूलों में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक हो रहा है, उसको हम बुरा नहीं कह सकते। सब का सब बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। डांस हो रहा है, उधर आपके बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है, उधर आपके बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है, आपके बच्चों को वहां पे बेहयाई सिखाई जा रही है, आपके बच्चों को सिंगर बनाया जा रहा है, अदाकार बनाया जा रहा है। हम इस बात पे आंखें बंद करके अपने बच्चे को सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम, मैं कहता हूं हमने अंग्रेजी अपने बच्चों को इतनी सिखा दी है, इतनी सिखा दी है, इतनी सिखा दी है कि ये हमारे बच्चे अंग्रेजों से बातें कर सकते हैं, अंग्रेजों को पढ़ा सिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम इतनी नहीं दी कि कम अज कम उनको वजू का तरीका आ सके, गुस्ल का तरीका आ सके। तो ये यहूदी तालीम को आम करना, इस्लामी तालीम को पस्त करना, ये हुसैनियत नहीं है, यही यजीदियत है। नाराज ना होना मेरी बात, इल्ला माशाल्लाह हैं कुछ ऐसे लोग जो अपने बच्चों को दीन सिखाते हैं, और इस तरीके से आजकल का बच्चा नौजवान फेसबुक देखता है, यूट्यूब देखता है, गूगल देखता है, इंस्टाग्राम देखता है। अच्छा, देखने के दौरान टिकटॉक देखता है, कोई इस्लामिक वीडियो आ जाए हम उसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, हम किसी इस्लाम की बात को, हम कोई इस्लाम की बात सुनने को तैयार नहीं। और अगर उसकी जगह कोई डांस करने वाला कोई बच्चा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, किसी अदाकार
का सीन आ जाए, हम उसको खुद भी देखते हैं, दूसरों तक शेयर भी करते हैं। तो ये बेहयाई बेगैरती को आम करना, ये क्या है? हुसैनियत है? नहीं, यही यजीदियत है। नाज़रीन कराम, इसी तरीके से आजकल के दौर में मेले लगते हैं, मेले पे क्या कुछ होता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, मेले पे ढोल ढमक्का होता है। तो तारीख इस्लाम पढ़ के देख लो, अहले बैत के मुकद्दस काफिले को शहीद करके यजीद ने क्या किया था? महफिल सजाई थी? नहीं, उसने मेला लगाया था, ढोल बजाए थे, डांस की पार्टी उसने रचाई थी। ये सब क्या है? यही यजीदियत है, हम अदा कर रहे हैं। अच्छा, कबड्डी, इसका कोई है इस्लाम में कुछ तसव्वुर है? कोई आज तक तारीख इस्लाम के किसी दौर में कबड्डी खेली जाती थी और कबड्डी खेलना एक इबादत है? नहीं, कहीं भी नहीं, इस्लाम का दूर तक तल्लुक कोई नहीं। और हमारे मेलों पे कबड्डियां खेली जा रही, कुत्ते लड़ाए जा रहे हैं, मुर्गियां लड़ाई जा रही। ये क्या है? करतब दिखाए जा रहे हैं, मदारी जो है वो अपने अपने करतब दिखाते हैं। ये क्या है? झूले लगे होते हैं और बड़ा तमाशे होते हैं। ये क्या है? हुसैनियत है? ये सब यजीदियत है। एक तरफ कबड्डी हो रही हो, अगले दिन जुमा हो, जुमे पे देखेंगे लोगों की तादाद बहुत कम होगी, कबड्डी पे हो बहुत ज्यादा तादाद होगी। अब मैं पूछता हूँ, क्या जुमा पढ़ने वाले सारे यजीदी हैं? कबड्डी देखने वाले सारे हुसैनी? नहीं भाई, मेरे भाई ऐसी बात नहीं। वो सब के सब यजीदी हैं, यजीदियत का किरदार अदा करें और जुमा की नमाज अदा करना, ये हुसैनियत है। हम इस्लाम से कितना कोई और दूर हमने जाना है यार। अल्लाह फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। हम इतने दूर हो चुके हैं, अभी और हमने दूर होना है। नाज़रीन कराम, अभी वक्त है आपके पास, हमेशा वक्त नहीं रहना। तो आपसे गुजारिश है, आप यजीदियत को काम हमने नहीं करना, हमने हुसैनियत फैलानी। शादी ब्याहों में क्या होता है? शादियों में सबसे पहले मेहंदी रचाई जाती है। क्या ये हुसैनियत है? ये यजीदियत है। इस्लाम का सिरे से कोई मेहंदी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमायूं बिठाया जाता है, इस्लाम में इसका भी कोई तल्लुक नहीं। बारात और फिर उसके साथ ढोल बैंड बाजे वाले साथ चलते हैं, हल्ले गुल्ले के साथ बारात जा रही होती। ये क्या है? ये हुसैनियत? नहीं भाई, यही यजीदियत है। आगे जनाब, निकाह, चलो वो सुन्नत है, बिद का बांटना सुन्नत है। उसके बाद जहेज देना, ये हुसैनियत है? जहेज का लेना हुसैनियत है? यार खुद देखें आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हमारे अंदर कितने काम यजीदियत वाले हैं। हम ढोल ढमक्के वालों को कितना पैसा दे देते हैं, मूवी बनाने वालों को कितना दे रहे होते हैं, एक इमाम मस्जिद जो निकाह खां है उसको हम कितना देते हैं। अब आप खुद समझ जाएं क्या हुसैनियत है और क्या यजीदियत है।
अगर वलीमा करते हैं, वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा का मतलब तो होता है गरीबों को खाना खिलाना। इतने गरीबों को बुलाते हैं जिनको कोई पूछने वाला आज तक नहीं और ना होना है। हम अपने वलीमों पर भी अमीरों को दावत देते हैं क्योंकि हमारी वाह वाह होनी चाहिए। तो ये सब का सब ये यजीदियत है। अब मैं बताऊं कि हुसैनियत क्या है। कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करना, ये हुसैनियत है। कुरान और सुन्नत के कवानीन पर अमल करना, खुद भी अमल करना और दूसरों को भी दावत देना, दूसरों को भी कोशिश करना कि दूसरे भी कुरान और सुन्नत पर अमल करें। कायम करना कवानीन को, ये क्या है? ये हुसैनियत। इस पूर्व फितन दौर में इस्लाम के कले को मजबूत करने की कोशिश करना, ये हुसैनियत है। हुसैनियत कौम की अमानत को बचाने का नाम है। जहालत के दौर में इल्म दीन की शम्मा को रोशन करना हुसैनियत है। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना, चाहे सर तन से जुदा हो जाए, ये हुसैनियत है। जब हुक्मरान जाबिर हो और कोई हक की बात कहने वाला ना हो, आप हक की बात कहें, ये हुसैनियत है। अपने हकूक के लिए बोलना, ये हुसैनियत है। मौजूदा दौर के अक्सर उलमा क्या कर रहे हैं? वो अपनी नौकरी की खातिर हक की बात को छुपा रहे हैं। यार मुझे कहीं कोई मस्जिद से निकाल ना दे, हक की बात को इसलिए छुपा रहे हैं। ये हुसैनियत है? नहीं, ये यजीदियत है। आपस में ना इत्तेफाकी को कायम रखते हैं, इत्तेफाक वाली बात नहीं अपने अंदर पैदा होने देते। ये क्या है? ये हुसैनियत है? नहीं। इख्तिलाफ बांटते हैं, ये हुसैनियत नहीं, ये यजीदियत है। और हाँ, अल्लाह माशाल्लाह कुछ उलमा हैं जो हक की बात करते हैं, डट जाते हैं, कहते हैं जो होता है हो जाए, हमने हक की बात को नहीं छोड़ना। हक की बात किसी को बुरी लगे हम करेंगे, ये हुसैनियत है। और हम ये समझते हैं कि सारा साल हम जो मर्जी करते रहें, एक मुहर्रम शरीफ में आके क्या करें? थोड़ा सा रो लें, क्योंकि रोने वाली हदीस हमें याद होती है और इस पे अमल करना भी बड़ा आसान होता है। तो इसलिए हम समझते हैं रोना धोना बस इससे हुसैनियत, आका हुसैन अलैहिस्सलाम का जो शहादत का मकसद पूरा हो जाएगा, तो हम ये रो धो लेते हैं। बाकी सारा साल हम यजीदियत के काम करें, कोई परवाह नहीं। हम समझते हैं बस इतना ही, यही मकसद था आका हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला बपा करने का, बस रो धो लिया, उसके बाद बात खत्म हो गई। सुन्नी शिया दोनों काम यही करते हैं। शिया थोड़ा आगे बढ़ के मातम कर लेते हैं, ये हुसैनियत। हमने हुसैनियत और यजीदियत को समझा ही क्या है, ये मैंने बयान करना था। हुसैनियत क्या है और यजीदियत क्या है। अगर इस पे और मजीद बात करूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।